Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now I am going to narrate you a very interesting story, the story of the judgment seat of Vikramaditya. The judgment seat of Vikramaditya is written by Sister Nivedita, who was born on 28 October 1867 at County Tyrone, Ireland. She was a social worker, author, teacher. She died on 13th October 1911, Darjeeling, India. At that time, she was of 43 years old. We are all familiar with the name of Vikramaditya. His reign has been a landmark in the history of our country. The Vikram Samvat owes its origin to him. जो विक्रम सावंत है वो कहाँ से लिया गया है? उनके ही शासनकाल से लिया गया है. Although his name is so famous, there are strange things that certain about him. However, he loved justice and learning. He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. It is said that he was the greatest judge in the history. History में जो है किसके नाम से जाने जाते हैं? एक महान न्यायकर्ता के नाम से विक्रमादित्य जाने जाते हैं. जस्टिस के लिए वो फेमस थे और उन्होंने अपने जो आसपास जो लोग उनके एकत्रित किए हुए थे वो सारे क्या थे? ज्ञाता लोग थे, सारे लर्नेड पीपल थे, सारे पढ़े लिखे लोग थे उनके कोर्ट में जो भी था. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, nor did he ever punish the wrong man. Deceived means धोखा होना. उन्हें कभी भी किसी बात का धोखा नहीं हुआ था. Nor did he ever punish the wrong man. और ना ही उन्होंने कभी किसी गलत आदमी को पनिश किया. The guilty tremble when they came before him, for they know that his eyes would look straight into their guilt. Tremble means कांपना. जो अपराधी होता था वो उनके सामने कांपता था क्योंकि उसे पूरा पता था कि जो विक्रमादित्य की आंखें हैं वो सीधे उसके अपराध को देख लेंगी. वो झूठ नहीं बोल सकता उनके सामने. एंड दोज who come to him with difficult problems were always satisfied by the judge pronounced his judgment seat skill. It was said of him, he must have sat on the judgment seat of Vikramaditya. और जो मुसीबत में जो लोग होते थे, जो उनके पास जजमेंट के लिए आते थे, वो बड़े उनकी जो स्किल थी जजमेंट करने की वो बड़ी अच्छी थी, उससे वो बड़ा खुश होते थे और उनको ये पूरा विश्वास था कि ये जो सीट है वो जरूर विक्रमादित्य की सीट है क्योंकि उनको जो जजमेंट मिलता था वो करेक्ट मिलता था, उनके फेवर में मिलता था. हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? परहैप्स नॉट, बिकॉज द सीट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर. I am going to tell you how it disappeared. Disappeared means गायब होना. क्या किसी ने देखी है उनकी सीट को? नहीं देखा. क्यों नहीं देखा? क्योंकि अब वो है ही नहीं. और कैसे गायब हुई वो देखिए आप. विक्रमादित्य, the people of Ujjain in due course of time forgot him. His palace and his fortress were ruined. The heaped up ruins, having been covered with grass, dust and trees, were turned into a pasture land for feeding the cattle. Cattle means animals, पशुओं के लिए. Pasture land जहाँ पशु चरने के लिए जाते हैं, हरे ग्रीन ग्रास लैंड्स होते हैं, वहाँ एनिमल्स जो हैं घास चरने के लिए जाते हैं. The village people used to send their cows out to these pastures to graze. Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys and wouldn't return till late in the evening. When it was time to turn, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cowherds would gather around him, and together they would turn homewards. वो जो वहाँ पे जो पूरी सीट थी उनकी, टाइम के साथ साथ क्या हुआ था, वो पूरा खराब हो गया था, पूरा बर्बाद हो गया था और वहाँ पर जो है
घास उग गई थी और पेड़ भी वहाँ पर हो गए थे। तो वहाँ पर जो है क्या बन गया था, एक पास्चर लैंड टाइप से बन गया था जहाँ पर एनिमल्स घास चरने के लिए जाते थे। जो गांव के लोग थे वो अपनी काऊ को वहाँ पास्चर लैंड में घास चरने के लिए भेजते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग जो कैटल्स थे वो अपने अपने जो है शेफर्ड्स के साथ में वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर घास वास चरा करते थे। जब वापस होने का समय आता था तो जो शेफर्ड बॉय होता था वो क्या करेगा, वहाँ पास्चर लैंड के वहाँ पे जाएगा और वहाँ से जो है सबको आवाज़ लगाएगा। सारे एनिमल्स भी वापस आएंगे, काऊ हर्ट्स वगैरह सब कुछ वापस सारे एक साथ इकट्ठा होते थे और उसके बाद जो है वो अपने अपने घर की तरफ वापस आ जाते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन। There were many of them, and in the long days of the pastures, they had found a playground, and how delightful it was. The ground under the tree was rough and uneven. Here and there was a green mound, which looked very much like a judge's seat. अब वहाँ जहाँ जाते थे बच्चे अपने गाय को, अपने पशुओं को लेकर के, वहाँ उनको क्या दिखाई देता था, एक प्लेग्राउंड था वहाँ पर जहाँ पर वो लोग खेलते थे, उनको बड़ा अच्छा वहाँ पे लगता था। वहीं पर जो है एक ग्रीन माउंट था जो ऐसा लगता था जैसे किसी जज की सीट है। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। आई से बॉयज, ही क्राइड, आई विल बी द जज and you can bring all your cases before me and we'll have trials. Then he straightened his face and become very grave to act part of judge. Grave? Grave means very serious. बिल्कुल गंभीर हो गया। उनमें से एक बच्चा क्या करता था, उस सीट के ऊपर जाके बैठ जाएगा और क्या कहेगा बाकी बच्चों से कि तुम अपने केसेस मेरे सामने लेकर के आओगे और उसके बाद जो है मैं उसका डिसीजन दूंगा। और उस समय जो है उस बच्चे का फेस कैसा होता था, बिल्कुल सीरियस, लाइक अ जज। अदर्स सॉ द फन एट वंस एंड अपीयर्ड बिफोर विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स। विस्परिंग का मतलब होता है धीमी आवाज में बोलना, खुसफुसाहट के साथ, ताकि किसी को सुनाई न दे। क्विकली जॉइंड अप सम क्वेरल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम। Each group stated their case, one saying that a certain field was theirs, another saying that a certain field was theirs, another saying that it was not, and so on. They all wanted him to settle the dispute. Dispute? झगड़ा। उन्होंने क्या किया, जल्दी से आपस में एक दूसरे के कान में बोला और उसके बाद एक झगड़ा क्रिएट किया और उसके सामने, बच्चे के सामने चले गए। झगड़ा क्या किया कि एक ग्रुप ने कहा वो फील्ड हमारा है, दूसरे ने कहा वो फील्ड हमारा है, और इस तरीके से जो है वो आपस में कहते चले गए और झगड़ा करते चले गए। सारे के सारे चाहते थे कि उनका जो झगड़ा था उसका सेटलमेंट हो। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन अ थिंग मेड इटसेल्फ। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट looked so different now. He had become grave and serious, and his tone and manner were so strange and impressive that the rest boys were a little frightened. Frightened means डर जाना। Frightened means डर जाना, डर गए। जिस तरह से वो बच्चा जजमेंट देता था, जिस तरह से वो उसकी जो स्ट्रेंज आवाज होती थी उससे वो डरते थे। Still they thought it was fun. And once again they put up a fresh case before him, and once more he gave his judgment. And this went on for hours and hours together, he sitting on the judge's seat listening to complaints and pronounce a sentence with the some gravity till it was time to return. And then he jumped down from his place and was just like any other cowherd. जब वो सीट के ऊपर बैठता था तो उसमें चेंजेस आ जाते थे। टोटली बच्चा जो है चेंज हो जाता था, बिल्कुल सीरियस, जैसे एक जज अपना सेंटेंस देता है इस तरीके से वो देता था। कुछ टाइम तो बच्चों को लगा ये मजाक है और उन्होंने तुरंत जो है दूसरा केस उसको दे दिया। तुरंत दूसरा केस देने के बाद भी उसको तुरंत जजमेंट मिल गया बच्चों को। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ।
एक के बाद एक घंटों ऐसे केसेस चलते गए और जजमेंट होते गए। उनकी कंप्लेंट्स को वो सुनता गया और सेंटेंस देता गया बड़ी सीरियसनेस के साथ में और करेक्टनेस के साथ में। और उसके बाद जो है जब वापस आने का समय होता था तो वो उस सीट से नीचे जंप कर लेता था, और उसके बाद जैसे ही उस सीट से नीचे उतरता था, जैसे और काउ हर्ट्स होते हैं उन्हीं की तरह से वो भी दिखाई देता है, बिल्कुल सेम एज द अदर काउ हर्ट्स वर। From then onward, so famous did his cowherd before him, and always the same thing happened. The spirit of knowledge and justice would come to him, and he would show them the truth. But when he come down from his seat, he would be no different from the other boys. तब से क्या हुआ उसके बाद से, जब वो बच्चा उस सीट के ऊपर होता था, उसमें जो जजमेंट देने का तरीका था, जो बच्चे में चेंजेस थे, वो जैसे पहले वो काउ हर्ड है, लेकिन अब उसके जो चेंजेस थे वो कैसे होते थे, लाइक अ जज वो उसके ऊपर बैठ करके अपने डिसीजन देता था। लेकिन जैसे ही वो उससे नीचे आता था, वो जो और बच्चे थे उनकी तरह से दिखाई देता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड। Grown up men and women from all the village would bring their dispute in the court of the cowherd boy, and always they received a judgment that both sides understood, and so went away satisfied. धीरे धीरे क्या हुआ, जो न्यूज़ थी वो कंट्री साइड में फैल गई कि एक जो काउहर्ड है वो किस तरीके से जजमेंट देता है। जितने भी ग्रोन अप मेन वुमेन थे वो अपने जो भी उनके जो डिस्प्यूट्स होते थे वो उस बच्चे के पास लेके आते थे, उनको जजमेंट मिलता था और जजमेंट के बाद वो सेटिस्फाइड भी होते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी वेल। ही सेड दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जब राजा ने सुना तो क्या हुआ, उसको पूरा विश्वास था कि ये बच्चा किसके ऊपर बैठा है, विक्रमादित्य की जजमेंट सीट के ऊपर बैठा है। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट अबाउट द रूइंस अबाउट द माउंट। लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। I too shall sit on it and hear all the cases. Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me, as well as I shall always be just king. उस राजा ने क्या डिसाइड करा कि जाकर के उसको खोदेगा और वो जो सीट मिलेगी, जजमेंट सीट जो मिलेगी उसके ऊपर बैठेगा, सारे केसेस सुनेगा, फिर वो भी फेमस होगा। और जो विक्रमादित्य जो है वो क्या होगा, वो उसके जो विक्रमादित्य हैं उनका जो नाम होगा वो उस राजा से थोड़ा सा कम होगा और वो भी जो है एक जस्ट किंग के नाम से फेमस हो जाएंगे। सो विद स्पेड्स एंड सॉल्व द ग्रेसी नो where the boy's plate was overturned. The boy who had been the self-made judge was sorrowful. Sorrowful means दुख से भर गया था। He felt that something very dear to him was being taken away. अब जब पूरा स्पेड से और सॉल्व से जो ग्रेसी लैंड था जहाँ पर वो सीट थी जिसके ऊपर बच्चा बैठता था वो खोदा गया। अब बच्चा बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसको ये लगा कि कुछ जो बहुत प्यारी चीज़ थी उसकी वो उससे छीनी जा रही है। At last the laborers came onto something. They uncovered it and found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 stone angles. Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य। जब लेबरर ने उसको खोदा तो उनको क्या मिला, फाइनली एक ब्लैक मार्बल का स्लैब मिला जिसमें क्या बना हुआ था, किससे सपोर्टेड था, वो हाथ से और कुछ विंग्स थे, 25 स्टोन एंगल्स विंग्स थे जिनमें वो सपोर्ट किया गया था। अब उनको पूरा विश्वास हो गया था कि ये जजमेंट सीट किसकी है, विक्रमादित्य की। विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल जस्टिस। द किंग ordered his people to observe 3 days prayer, fasting, and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. Ascend करना means सीट में चढ़ना, ascend करना means चढ़ना। बड़ी खुशी के साथ जो है उसको कहाँ लाया गया, शहर में लाया गया। फिर जहाँ जो जस्टिस हॉल था वहाँ पर उसको प्लेस किया गया। राजा ने क्या ऑर्डर किया कि 3 दिन तक जो है
उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, प्रेयर की जाएगी, फास्ट किए जाएंगे और उसके बाद जो है 4th डे में वो उस सीट के ऊपर पब्लिकली बैठेगा, चढ़ेगा उस शासन के ऊपर। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड्स assembled to see the king take his seat. Walking through the long hall came the judges and priests of the kingdom, followed by the king. Then, as they reached the seat of judgment, they parted into 2 rows. Next morning, राजा और जो उसके और प्रिस्ट लोग थे, जो उसके और साम्राज्य में जो लोग थे, उन्होंने उसको जजेस लोगों ने उसको फॉलो किया। सारे के सारे जो है एक साथ जहाँ वो सीट रखी गई थी वहाँ गए। जैसे ही वो उस जजमेंट सीट के पास में पहुंचे, वो 2 रो में डिवाइडेड हो गए। द किंग वॉकिंग अप इन द मिडल bowed his head in reverence and went straight to marble slab. When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. Stop, it said. Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of Vikramaditya? Have you never desired to rule over kingdoms that were not yours own? For a while, the king couldn't think of an answer. He knew his life was unjust. After a long silence, he spoke. No. He said, I am not worthy, so that you may purify yourself and be worthy to sit on the throne. With these words, it spread yourselves its wings and flew away. राजा जैसे ही उस सीट में बैठने वाला था, तुरंत एक एंजल ने उसको रोक दिया और उसको पूछा कि क्या तुम इस सीट के लायक हो? क्या कभी तुमने ये डिजायर नहीं किया कि तुम दूसरे के साम्राज्य पर रूल करो? थोड़ी देर राजा चुप हुआ, सोचा और फिर उसने डिसीजन दिया कि हाँ, वो इस सीट के लायक नहीं है। तो उस एंजल ने उसे कहा, तो पहले अपने आप को प्योरीफाई करो और इस सीट के लायक अपने आप को बनाओ। और ऐसा कह करके उसने अपने पंख फैलाए और दूर उड़ गई। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। बट दिस टाइम अगेन एट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य सेम थिंग हैपेंड। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम if he had never desired to possess the riches of others. The king admitted that he had done so and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat. दोबारा उसने अपने आप को प्रिपेयर किया राजा ने, दोबारा उसने बैठने के लिए गया, दोबारा दूसरी एंजल ने उसको रोक दिया। और क्या कह के रोका कि क्या कभी तुमने जो दूसरों की प्रॉपर्टी थी, दूसरों की जो संपदा थी, उसको अपनाने की कोशिश नहीं करी, उसको हड़पने की कोशिश नहीं करी? राजा ने ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ, उसने ऐसा किया था। दोबारा जो है वो उस सीट पर नहीं बैठ पाया। इन दिस वे, whenever the king tried to occupy the throne, he was questioned by an angel and he had to withdraw. This went on till only one angel was self-supporting the marble slab. The king went near the throne with great confidence, for he himself sure of being allowed to take this place that day. उसके बाद एक जो है उसको एक के बाद एक वो सीट में बैठने की कोशिश करने के लिए गया, लेकिन वो रोक दिया गया। तब तक चलता रहा जब तक जो सेल्फ सपोर्टिंग मार्बल वाले जो स्लैब में जो किंग जो उसके पास जा रहा था बैठने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कि अब उसको पक्का वो सीट मिलने वाली है, उसको पूरा विश्वास था कि वो उसमें जाएगा और अब उसमें बैठ जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, द लास्ट एंजल स्पोक, आर यू देन परफेक्टली प्योर दैट एज इन हार्ट, ओ किंग? If your heart as pure as that of a little child, if so, you are indeed worthy to sit on this seat. क्या पूछा कि क्या तुम्हारा हार्ट छोटे बच्चे जैसा हार्ट है? छोटे बच्चे का हार्ट जैसे साफ सुथरा क्लीन होता है, उसके हार्ट में कोई इम्प्योर थॉट्स नहीं होते, उसी की तरह से प्योर है? तो अगर है तो तुम इस सीट में बैठ सकते हो, तब तुम इसके लायक हो। No, said the king very slowly. No, I am not worthy. And at these words, the angel flew up into the sky, bearing the slab upon his head. This was how the judgment seat of Vikramaditya disappeared from the earth forever. और जब राजा ने जैसे ही मना किया, तुरंत जो
लास्ट एंजल थी, अपने सिर पर उस स्लैब को रख करके वो ऊपर चली गई। और इस तरीके से जो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी वो हमेशा के लिए गायब हो गई। तो देखा बच्चों, अगर हम किसी दूसरे की चीज़ को हड़पना चाहते हैं, किसी दूसरे की चीज़ पर गलत नज़र रखते हैं, तो हमें गॉड हेल्प नहीं करते, हमें फिर अपनी चीज़ भी नहीं मिलती है। जैसे विक्रमादित्य ने वो सीट, विक्रमादित्य की जो सीट थी, राजा के प्योर थॉट्स नहीं थे, इस वजह से वो सीट उससे छीन ली गई थी। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।